Corporate Director of Talent Empowerment Service. Mr. Gautapatha poses fantastic international exposure, enriching himself with different cultures and delivering high quality training across in India, UAE and US. Today he is going to talk about exam phobia among the students. This is a subject in which the students are deeply interested. I think I am correct. You all have exam phobia, right? I hope all the students and parents will get benefited a lot. And some request, all the students, please concentrate. Now I request Mr. Bhagat Rahman, please come on with us and start. Please. Please put your hand together. In India, Dell International Texas USA, certified as corporate communication bureau specialist, Accenture Canada operations, certified as team leader. Alhamdulillah, लंबा जाता है लिस्ट. ये मैं क्यों बोलने का क्या जरूरत है? My dear children, understand this point very clearly. The first 10 to 15 seconds, चाहे आप कहीं भी हो, किसी के भी सामने हो, पहला 10 सेकेंड या पहला 15 सेकेंड बहुत इंपैक्ट करता है. आपके सामने कौन है, कौन आपसे बात करने वाले हैं, वो इंपैक्ट करने के लिए पहला 10-15 सेकेंड जरूरी है. और उसके लिए भी क्या जरूरी है? अपना स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, सर्टिफिकेशंस. राइट. I have total 22 years of professional experience in corporate, more than 16 years of training and development. I was in US, I was in UAE, now I'm in India. I'm a freelancer in India now. I was with UAE Abu Dhabi Education Council as a master trainer for 100 schools of IGCSE British Cambridge curriculum, American Education Reaching Out curriculum, CBSE Indian School curriculum. अब आप सोच रहे होंगे, what the hell he is doing here? सवाल तो दिमाग में आएगा, भाई इतना सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस है, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? उसका भी एक मकसद है. There is a vision, there is a goal, there is a definite purpose. आज आप लोग यहाँ क्यों आए? Come on बेटा, you can remove your mask if you don't mind. It's okay. आप लोग क्यों आए आज? To interact with me, to get motivated. मैं कोई जादू नहीं करने वाला. We are going to have a talk, very clear conversation. कितने कितने बच्चे 10th के हाथ उठाइए? 10th students. Okay. Those who are intermediate. Okay, degree. Okay, good. Alhamdulillah. चाहे वो 10th हो या intermediate हो या degree हो. The first thing what matters is your mindset. प्लीज मेरी बात गौर से सुनना. आप मेरे इंट्रोडक्शन में बहुत अहम पॉइंट बोलना भूल गए मैडम. मेरा बैकग्राउंड आपको मैं बता रहा हूँ. अब ये मत पूछो कि हैदराबाद क्यों, क्योंकि हैदराबाद ससुराल है. ओके, इट्स अ फैक्ट. Born in Chennai, brought up in Mumbai, settled in Hyderabad. And I am very proud to say, my dear children, my dear sisters and brothers, I am a student of Dr. APJ Abdul Kalam sir. Yeah, alhamdulillah. तालियां बजाने के लिए नहीं बोला, इम्पैक्ट करने के लिए बोला. मैं सर का एग्जाम दे रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद विल गो इन डीप. एपीजे अब्दुल कलाम सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सेशन ले रहे थे. In middle of the session, a man raised his hand. He said, "Sir, I have a question." गौर से सुनेगा, क्वेश्चन क्या है? The man asked, "What is the difference between a railway station master and a school master?" सवाल क्या था? It was बेहुदा सवाल बोलते हैं हम. अरे कितना सवाल पूछ रहे हैं? It was totally irrelevant. Got it? The question was, what is the difference between a railway station master and a सब लोग खामोश. Everyone was curiously waiting for the answer. और सर जो अंदाज से जवाब दिए, मैं बोला सर कैसा जवाब दिए? He said, railway station master minds the train and school master trains the mind. समझ में आया? समझ में आया?
Railway station master minds the train. School master trains the mind. Please understand this concept. पहली सीधी है mindset. आपका belief system यहाँ पे स्टोरी करते हम लोग. I am talking about the normal person. Anywhere you go to India, travel across anywhere in India, we have our own perception. Yes or no? आपका परसेप्शन अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, या आपका अलग है, या आपका अलग है, आपका अलग है. ये सब इसके लिए अल्लाह ताला हमको यूनिक बनाया. अल्लाह ताला ब्रेन भी दिया और माइंड भी दिया. ये सब नो ब्रेन सबका एक ही है. ये सब नो लेकिन माइंडसेट अलग है. ये सब नो ब्रेन एक ही है, साइज एक ही है, इसकी पूरा कंटेंट एक ही है, लेकिन माइंडसेट क्या है? डिफरेंट है. दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू थिंक, हाउ यू विजुअलाइज. इमेजिनेशन बोल के एक चीज है. जैसे कि हमने बोला हम लोग सब मदीना मुनव्वरा के सामने पहुंच गए ना. पावर ऑफ इमेजिनेशन, स्पीड एंड लाइट. समझ आ रहा? तो बेटा ये इमेजिनेशन में काम करना जरूरी है. एग्जाम फोबिया क्या है? व्हाट इज एग्जाम फोबिया? 10th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बोलते हैं बच्चों में और पेरेंट्स में इतनी टेंशन, इतना बोलते ना अपने आप में वो लोग नेगेटिव वो बोलते हैं क्या करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम आ जाए. ये फियर क्यों है? सब माइंडसेट पे है. आपकी सोच में फियर है. दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. 10th एग्जाम और 12th एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. आज मैं यहाँ हेल्पिंग हैंड्स एंड फैजान ट्रस्ट, अलहमदुलिल्लाह, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर. थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी. पहला सेशन है मेरा आज. इसका एक मकसद भी मैं बताऊंगा, लेकिन यू ऑल बिलीव आप जहाँ बैठे हैं हेल्पिंग हैंड्स एंड फैजान ट्रस्ट कौम के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है, देखना, सोचना, समझने की सलाहियत जरूरी है. आज इतने लोग यहाँ मौजूद है. ये सब ये सेशन आज तक पहले कभी हुआ? पहले कभी कोई ऑर्गेनाइज करे ये सेशन बच्चों के लिए? एग्जाम फोबिया. ओके, एग्जाम्स के बाद क्या? कैरियर काउंसलिंग, कैरियर एनहांसमेंट क्या करना है. अभी अब 10th के बच्चों को छोड़ दो, इंटरमीडिएट छोड़ दो, ग्रेजुएशन, MBA, इंजीनियरिंग बच्चों को पूछो. आफ्टर इंजीनियरिंग वॉच, आफ्टर MBA वॉच. बच्चा क्या बोलेगा देखेंगे. पहले 4 बैकलॉग है, सोचेंगे 3 बैकलॉग है. और एक बच्चा बोले अब्बा बोले तो इंजीनियरिंग कर दिया, मैंने खानदान से डॉक्टर तो मैंने मेडिकल कर दिया. My dear children, it's not like that. You need to understand where is your area of expertise. आपका strength क्या है, आपका expertise क्या है. मैं आज आपको 2 इंटरनेशनल टूल सिखाऊंगा. आज सेशन है, सबको मालूम है, आए यहाँ पे, लेकिन अफसोस से बोल रहा हूँ किसी का हाथ में नोट पैड और पेन नहीं है. एक दो बच्चे बता रहे जल्दी नोट पैड. किसके हाथ में नोट पैड पेन है? बहुत कम. ये तो गिन सकता हूँ. ये तो प्लीज आप कभी भी कोई भी सेशन या कोई भी सेमिनार या कोई भी प्रोग्राम अटेंड करने जाएंगे, ये मैंडेटरी है, ये हैबिट, ये बहुत अच्छा हैबिट है कि आप एक नोट पैड और पेन हैंडी रखें. समझ आ रहा? ये नहीं बोलो इसे पहले सेशन में आप लेके आना, वैसे नहीं बोलो. कभी भी कहीं भी क्यों बोलो? जितना आप नोट बनाएंगे उतना अच्छा है. यस और नो? यस. एक सवाल पूछूं? अल्लाह से सवाल पूछो. हाँ? देखो, एक सवाल है. What are basic competencies and what are communication skills? Anyone? Come on, don't hesitate. What are basic competencies and what are communication skills? ये सेशन में आप ये मत सोचो कि अरे शुरू हो गया ट्रेनिंग. ये ट्रेनिंग नहीं है, टीचिंग नहीं है, सब कुछ सीखने का मौका है. What is everyone? Now, my dear children, tell me, what is the difference between basic competency and communication skill?
Anyone? Anyone? It's okay, come on. ठीक है, एग्जाम्पल दूं मैं आपको मैं हंसाऊंगा और उसके बाद सेशन दूंगा. तो क्या होता है, फन विथ लर्न कॉन्सेप्ट है, जल्दी दिमाग में घुसता है. yes or no? आपको मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ. और इंडिया में कितने स्कूल्स है, कितने कॉलेजेस है, वी ऑल नो. वहां पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका कॉलेज लेक्चर हूँ, मैं बोलूंगा माय डियर चाइल्ड, आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट, आई विल गिव यू 4 days टाइम, यू विल कम ऑन day 5 एंड सबमिट द असाइनमेंट. अब ये बोलूंगा, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू रिमूव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे होकर नोट करेंगे. yes or no? ओके, 4 दिन 5वां दिन हाँ मैं सबमिट करूंगी. हम लोग घर पे जाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बहुत स्मार्ट है, क्योंकि हम भी टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड में जिए हैं. टेक्नोलॉजी है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सो वाईफाई है, नेट है. हम लोग बहुत स्मार्ट है. क्या करेंगे, गूगल सर्च में जाएंगे. यस और नो? गूगल सर्च में जाएंगे, यू विल पुल आउट ब्यूटीफुल 4 to 5 वेबसाइट्स. उसको कॉपी पेस्ट करेंगे. क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे. और 20 पेज प्रेजेंटेशन, थोड़े बच्चे हम बहुत स्मार्ट, वो कॉपी पेस्ट में पिक्चर अराउंड करेंगे, इमेजेस. गॉट इट? क्या हुआ, सब लोग खामोश, टेंशन में बैठो. टेंशन क्लास नहीं, अभी बात करूंगा मैं, आपसे बात करना में खाली मैं बक करूंगा, आपको सुनना नहीं, ऐसा नहीं होता. गॉट इट? आई आस्क मोर क्वेश्चंस. तो क्या करेंगे, 20 पेज प्रेजेंटेशन लाके लेक्चर को सबमिट करेंगे. और लेक्चर, वाओ फैंटास्टिक, खत्म. बोलते बच्ची और बच्चा, सर मैं क्या, सर आई डिड. अगर मैं आपका लेक्चर होता, व्हाट आई डू, यू नो, आई से वेरी गुड, आई विल कीप लॉन्ग एक्सप्लेन. तारे जमीन पे फिर देते, दिन में तारे नजर आते. क्यों बोलो आप, माय डियर चिल्ड्रन, कॉपी पेस्ट. वी आर हैबिचुएटेड टू कॉपी पेस्ट. एवरीथिंग व्हाट वी डू इज कॉपी पेस्ट. यहाँ एम्प्टी है, यू कैन नॉट टॉक बिकॉज नो रीडिंग, नो राइटिंग, ओनली कॉपी पेस्ट. 25 पेज, 40 पेज, 50 पेज प्रेजेंटेशन सबमिट करते हैं आप, प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करते हैं आप. यस. कितना उसमें राइट करते, कितना रीड करते, कितना अंडरस्टैंड करते. कुरान भी बोलता है इकरा, पहला वर्ड क्या है, इकरा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकरा? रीड. रीड नहीं भाई, पढ़ तो नींद आती. मैं पढ़ा, पढ़ने आती थी, ऐसा पढ़ तो नींद आती. Please understand this. If this is empty, you cannot talk. इसको भरना जरूरी है. इसको मैं बताता हूँ कैसे करना. अब मैं आपको मैं समझाऊंगा ये इसका डिफरेंस क्या है. सीखना है? Yes, sir. ओके गुड. अब थोड़ा एनर्जी आना लगे. ओके, बेसिक कॉम्पिटेंसी आर 3 एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर 3. बेसिक कॉम्पिटेंसी 3 है, वो है रीड, राइट एंड कैलकुलेट और कंप्यूट. I'll repeat, read, write and calculate or compute. That is basic competencies. आप कहीं भी जाओ, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर, कोई भी डोमेन, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दे टेक एप्टीट्यूड टेस्ट. ये सो नया रूल आने वाला है सीबीएसई का. टीचर्स को भी एप्टीट्यूड टेस्ट लेने वाले हैं, इवन विद लैंग्वेज एफिशिएंसी. एप्टीट्यूड क्यों? They want to test your logical reasoning power, your analytical capability, your speed, your accuracy. कितने नंबर्स में कितने कंफर्टेबल है आप, वो चेक करना चाह रहे लोग. तो रीड राइट जरूरी है. The more you read, the more you write, the more you learn, understand the language, the more you understand the subject. समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir. यानी कि जितना रीड करेंगे, जितना राइट करेंगे, उतना लैंग्वेज भी इंप्रूव करेंगे और सब्जेक्ट नॉलेज भी इंक्रीज होगा इंशाल्लाह. क्लियर? These are the 3 skills of basic competencies. Now communication skill भी 3 है. पहला सीढ़ी, लिसन. क्या? मैं एक सेशन में, मैं आई एम ए फ्रीलांसर विद यूनिवर्सिटीज एंड बिजनेस स्कूल्स. एक बिजनेस स्कूल में सेशन ले रहा था, तो हमारे बच्चा उठ के बोला, सर हम सुनते नहीं सुनाते हैं. उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, सर हम सुनते नहीं सुनाते हैं. और हम भी उस तरह थे, छोड़ते हम. मैं उसके लैंग्वेज में बोला, बेटा सुनाने के लिए सुनना पड़ता है. क्या बोला मैं? Absolutely, it's a fact.
सुना कब सुनाएंगे अब खुद आप सुनिए लिसनिंग जानदार पब करते हैं यूट्यूब में बहुत मिल जाता है वीडियो मेरा भी वीडियो है यूट्यूब में डोंट वरी मैं अब लिंक दूंगा इंशाल्लाह अब आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का दूसरा लेवल दैट इज स्पीक क्या है वो स्पीक अब आप बताइए एक एग्जाम्पल में बोलता हूँ हैदराबाद के 2 बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेन करा MBA पास आउट बच्चे हैं जब MBA पढ़ के वापस बाहर आए बच्चे कॉलेज के बच्चों का एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 84% कितना 84%। माय डियर सिस्टर्स माय डियर ब्रदर्स माय डियर चिल्ड्रन मैं बच्चों को एक ही सवाल बोला ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ फॉर 2 मिनट्स क्या बोला मैं हार्डली 15 सेकेंड्स बात करा बच्चा वो भी कैसा आई मोहम्मद शाहबुद्दीन फिनिश्ड MBA फ्रॉम दिस कॉलेज Now you tell me when you can't talk about yourself for hardly 2-3 minutes. If being HR of a company, I would say, come on man, he's not going to explain any concept, any process. It's not possible. मैं आपके सामने एक्सेंट में बात नहीं करना चाह रहा हूँ एक्सेंट ट्रेनर हूँ मैं You know what, if I talk in accent, you love to listen to it. बाबा हल्ला अच्छा है मेरे घर के बाद समझा है क्या लेकिन अच्छा था छोड़ो जानना वो नहीं चाहिए अपने को तो लैंग्वेज भी बहुत लेवल के है समझो बात समझा तो कम्युनिकेशन का स्पीक हो गया स्पीक क्या है यू नीड टू फ्रेम ए प्रॉपर क्लियर सेंटेंस विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैं अफसोस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो यूएई से अच्छा मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ मकसद मेरे वालिद साहब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में थे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं हर स्टेट में ट्रैवल कर रहा हूँ आई नो 8 लैंग्वेजेस अल्हम्दुलिल्लाह तो वालिद साहब का एक ख्वाहिश था कि बेटा कुछ अपने आप स्टार्ट करो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन लाओ और वालिद साहब के अब माँ बाप के हमेशा ख्वाब थोड़े बड़े रहे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बोला ठीक है बात देखेंगे मैं यूएई में था और छुट्टी में आया था 15 दिन छुट्टी में May 1, 2016 आई केम टू हैदराबाद May 15 को मेरा फ्लाइट है वापस May 8 को मेरे वालिद साहब के साथ मेरी गुफ्तगू हुई मेरे लाइफ के मेरे मेंटर है मेरे कोच है मेरे सब कुछ मेरे वालिद साहब है आज मैं आपके सामने फख्र से करके बोल सकता हूँ कि आई एम USA सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर बिकॉज ऑफ माई फादर 1 तारीख की बात 1 तारीख को आया 8 तारीख की गुफ्तगू हुई 15 को ब्रेक है 8 तारीख को वालिद साहब बोले अब बहुत हो गया यू स्टॉप यू पुट एन एंड टू एवरीथिंग supposed to fly May 11 I lost my father okay May 11 I lost my father then you won't believe I resigned my job only to fulfill my father's last wish you know what was that to bring in revolution in education sector and make our students globally employable. बोलना आसान है बोलना आसान है now globally employable फैजान जो ट्रस्ट है और हेल्पिंग हैंड्स बच्चों का करियर बनाना करियर इन व्हाट एरियाज there are 4 major platforms you can make a career either you can go for multinational company jobs or you can go for universities in higher education abroad or you can go for competitive exams IFS, IAS, IPS, IRS or you can become an entrepreneur start up your own company लेकिन उसके लिए there are certain skills which are mandatory you need to possess clear वही है ये जो मैं आपको बताया बेसिक कॉम्पिटेंसी और कम्युनिकेशन स्किल स्पीक हो गया कम्युनिकेशन का सेकंड लेवल कम्युनिकेशन का लास्ट लेवल है प्रेजेंटेशन स्किल क्या है yes it all depends upon how you talk how you walk आपका आई कांटेक्ट आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपका स्माइलिंग फेस हैंड जेस्चर बॉडी पोस्चर बॉडी लैंग्वेज एक एग्जांपल मैं आपके यहाँ खड़े हैं मैं बोला अस्सलाम वालेकुम मैं बरकतुल्लाह खान मैं ट्रेनर हूँ क्या लग गया मेरा मैं कुछ परेशान हूँ
reduce. क्या करेंगे आप? Reduce करना है, remove नहीं कर सकते प्लीज. कोई से accent भी हो या fear हो या shyness हो, you cannot remove, you can reduce. Got it? तो presentation skills matters a lot. अब आता हूँ आपके टॉपिक पे, एग्जाम. ये दिमाग में बिठा लिया, अल्लाह अकबर, एग्जाम आ रहा. अब तैयारी कुछ भी नहीं हुआ. कब एग्जाम सब है? 17 मई. अलहमदुलिल्लाह बहुत टाइम है. चैलेंज करता हूँ मैं आपको ऐसा एक टेक्निक दूंगा, लेकिन एक अदबन गुजारिश, हम्बल रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रैक्टिस दैट टेक्निक. चैलेंज करता हूँ, आप लोग 70% स्कोर करेंगे इंशाअल्लाह. विल यू डू इट? यस. अच्छा, एनर्जी नहीं है. विल यू डू इट? यस. ओके. और एक बार पूछेंगे, कौन कौन यहाँ पे जो 10th स्टूडेंट हैं या माँ बाप जो 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप बताइए. 10th स्टूडेंट्स और पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ऑन 10th. ओके, ग्रेट. इंटरमीडिएट. ओके, ग्रेट. ग्रेजुएट, पीजी और इंजीनियरिंग. चलो ठीक है ना. बोर्ड एग्जाम्स 10th. पेरेंट्स आपसे एक अदबन गुजारिश है, प्लीज बच्चों को आप प्रेशराइज नहीं करना है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. और एक जहन रहता पेरेंट्स का कि बॉटम लाइन इज द स्कोर, द मार्क्स. आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू डू, हाउ यू डू, आई वांट मार्क्स, आई वांट स्कोर. ये आप माइंडसेट हटाइए, क्योंकि नॉलेज और विजडम में जमीन आसमान का फर्क है. व्हाट इज नॉलेज? क्या बोला? तालीम. विजडम? होशियारी. नॉलेज इज व्हाट यू लर्न एंड व्हाट यू एक्वायर. जो आप हासिल करते हैं वो नॉलेज है. और विजडम क्या है? When you know the knowledge, what you learn, when you know when to apply, where to apply, how to apply, that is your wisdom. The practicality of your subjects, of your subject matter experts. Your understanding about that particular subject in my day-to-day work life, where and when I will be applying this concept or this process or this methodology. Clear? कभी भी आप 10th हो या इंटरमीडिएट हो, कभी भी कुछ भी आप पढ़ेंगे, प्लीज गौर कीजिए ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ, ये पढ़ने से क्या फायदा है, आगे चल पे कहाँ पे, कौन से वक्त पे कहाँ अमल में ला सकता हूँ. क्लियर? प्रैक्टिकलिटी वेरी इंपॉर्टेंट. You will move from knowledge to wisdom and you will become intellectual because you know how to apply, when to apply, where to apply, what to apply. Got it? Clear हो गया? अब आता है एग्जाम फोबिया. मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम सर का एग्जाम्पल बोला, yes or no? माइंडसेट, yes or no? तो पहला आता सेल्फ बिलीफ. प्लीज ये माइंड से निकालना है कि एग्जाम्स आ रहे हैं. सोचो इनको, आज तक अब जो हो गया, बिकॉज वी कैन नॉट गो बैक एंड करेक्ट द पास्ट. नो, but today we can take a decision and we can have our own timetable and practice that, implement that and make sure that we coming out and giving our best. Yes or no? Yes. उसके लिए पहला टेक्निक है mind mapping. What is that? Mind mapping. Who is the founder of mind mapping? No, बरकतुल्लाह खान नहीं है, मैं नहीं हूँ. फाउंडर ऑफ माइंड मैपिंग इज टोनी बुसान. कौन? हमारे बुझाना पानी है, टोनी बुसान. राइट? टोनी बुसान. ही इज द फाउंडर ऑफ माइंड मैपिंग. यू नो, इट्स अ वेरी वेरी impactful international tool, mind mapping. ये क्यों इतना पावरफुल है मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है. ये जो लाइव हो रहा है सेशन, ये लाइव सेशन हो रहा है ना बेटा? Okay. When you are sitting and listening to me live, it is hitting your conscious mind. क्या है? Conscious mind दो है, conscious mind, subconscious mind. मैं unconscious mind बात नहीं कर रहा हूँ. ये माइंड मैपिंग क्यों इतना इम्पैक्ट हो, मैं पहले बताऊंगा. ये एक्चुअली स्टार्टेड इन यूके 1990s में स्टार्ट करते हैं टेक्निक. और यूके में IGCSE कैम्ब्रिज ब्रिटिश करिकुलम स्कूल्स के बच्चों को 8th ग्रेड बच्चों को दे रहे थे. आज हर इंटरनेशनल स्कूल्स विद इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में ये टूल्स देते हैं. इसके अलावा माइंड मैपिंग के साथ स्वॉट एनालिसिस, स्टोर एनालिसिस, जो आप लोग पहली बार सुन रहे हैं. मोस्ट ऑफ यू, यस और नो? यस. स्वॉट एनालिसिस एंड स्टोर एनालिसिस.
तो माइंड मैप के बाद मैं आपको स्वॉट एनालिसिस समझाऊंगा, मेरे को याद दिलाना, स्वॉट एनालिसिस। ओके, तो पहले माइंड मैपिंग। बड़े अभी माइंड मैपिंग का डेफिनेशन ऐसा दिए वो लोग कि माइंड मैपिंग इज अ सिंपल एंड बेस्ट टेक्निक विच विल इम्प्रूव एन इंडिविजुअल्स मेमोरी पावर and help an individual to initiate a talk, a discussion or a presentation. I'll repeat the definition. Mind mapping is a simple and best technique which will help an individual to improve his memory power and help an individual to initiate a talk, a discussion or a presentation. ये क्यों? ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क करता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी हम जो लाइव बात कर रहे हैं ये पूरा क्या हो रहा है, आपके कॉन्शियस माइंड को हिट हो रहा है। ये और नो, अभी आप घर जाएंगे शाम में आपके दोस्तों के साथ या घर में जाके आप सबको बोलेंगे कि आज हम लोग सेशन अटेंड करें हेल्पिंग हैंड्स के वहाँ पे, और इतना बेहतरीन सेशन था जो आप रिकलेक्ट करेंगे अपने आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे। आई रिपीट, जो आप होता थोड़े बच्चे तो और आगे और एग्जाम के बाद घर पर अब याद आ रहा देखो ये सब थोड़े बच्चे और भी आगे अम्मी अब्बा डराते ही याद आ गया, अब किसका भी याद नहीं आया बोलते ये सब और अब्बा मम्मी इंतजार में देखा आता कि क्या पूछूंगी बोलते। प्लीज डोंट डू दिस। पेरेंटिंग का भी है ना, आर्ट एंड साइंस ऑफ पेरेंटिंग एंड कॉन्शियस माइंडफुल पेरेंटिंग टेक्निक्स इंशाल्लाह फिर कभी। तो यहाँ आते बच्चों का इशू। अब क्या हो गया पे समझ आ गया, यानी कि रिकलेक्शन कैपेबिलिटी, you learn everything in all the subjects, but when you go for exam sometimes you are not able to recollect, yes or no? वो याद नहीं आता। क्वेश्चन देखते कौन की है बोलते, लेकिन क्वेश्चन देखते ही अगर आप माइंड मैपिंग प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन देखते आप बोलेंगे अरे ये क्वेश्चन वो चैप्टर में, वो कंटेंट में, वो यूनिट में था। दैट इज द पावर ऑफ माइंड मैपिंग टेक्निक। मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा। यूएई में विद अबू धाबी एजुकेशन काउंसिल ऑलमोस्ट 2000 बच्चों को हम लोग माइंड मैपिंग टेक्निक दिए। वो 2000 बच्चे कौन है मालूम? एवरेज जो 40-45% लेते बच्चे स्कूल के अरब में, यूएई में 2000 बच्चों को हम लोग माइंड मैपिंग में ट्रेन करें, प्रैक्टिस करें। यू वोंट बिलीव 2016 10th बोर्ड एग्जाम बच्चे कितना स्कोर करें मालूम आपको? अबव 70-75। अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ माइंड मैपिंग। हमें आपको बोल दिया टोनी बुसान, हमें आपको बोल दिया कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड। अब ये कैसा करते हैं? आप गूगल में अगर या यूट्यूब में टोनी बुसान मारो, आपको टोनी बुसान का माइंड मैपिंग टेक्निक पूरा मिल जाएगा। लेकिन प्लीज don't directly go and watch Tony Buzan mind mapping. That is a high level of mind mapping with curves and colorful combinations. I'll repeat. टोनी बुसान का जो माइंड मैपिंग जो यूट्यूब में है वो कर्व्स और कलरफुल कॉम्बिनेशन के साथ हाई लेवल ऑफ माइंड मैपिंग है। पहले हमारे को बेस लेवल ऑफ माइंड मैपिंग करना जरूरी है बिकॉज इट स्टिक्स ऑन योर माइंड। क्लियर एवरीवन? मैं आपको बताया मेरा बैकग्राउंड क्या है मालूम है? मेरा बैकग्राउंड क्या है? born in Chennai, brought up in Delhi, brought up in Mumbai, हाँ, settled in, अब वो क्यों रखो बोलो, हाँ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, I'm going to do a mind mapping on Hyderabad. For example, अभी मैं किसी को बोला यहाँ आके हैदराबाद के बारे में बात करो, हैदराबाद, हाँ, फेमस फॉर बिरयानी, बिरयानी चाय, चारमीनार, और क्या? You need to have certain inputs to talk. Got it? अब आप माइंड मैपिंग सिखाऊंगा मैं आपको। अब समझिए ये आपका बहुत बड़ा A4 साइज पेपर है। Center of the page, you write the topic Hyderabad. You will put a cloud. Okay. And what you do is you will start putting key points. For example, capital of Telangana, Telugu, local dialect, famous for food, historical monuments, tourist destination, culture and tradition, economy, infrastructure, international airport, high-tech city, metro, education system, festivals,
Yes or no? Clear? इसमें और भी ऐड कर सकते हैं आप, ट्विन सिटी, कोल सिटी, सिटी ऑफ नवाब्स। अब आप देखिए, मैं एक एक पॉइंट लिखने के बाद व्हाट आई डू इज आई विल सिट एंड ट्राई टू राइट A4 साइज शीट ऑन द टॉपिक Hyderabad. For your information, you can write 3 to 4 pages. How Hyderabad was the capital of Andhra Pradesh. Due to the political scenario, the political bifurcation happened. It is divided into Telangana and Andhra. As Hyderabad is falling under the jurisdiction of newly formed state Telangana, is the capital city of Telangana, and Telugu is a local dialect. Urdu is also spoken because majority of the Muslim population in Hyderabad. Hyderabad is famous for food, biryani, which is worldwide famous, and halim, which is made in the month of Ramadan. मुंह में पानी आ गया. And also very famous for Irani chai and Usmania biscuits. And Charminar is a world-known, the historical monument which is Hyderabad famous for. And there are other lot of historical monuments like Golconda Fort, Falaknuma Palace, Chowmela Palace, is or no. Then tourist destination, the major attraction of tourist destination from the world is Ramoji Film City. Got it? तो ऐसा आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आप. You go on talking. You can stand and talk for 5-10 minutes on the topic. This only because of mind mapping. अब आपको सब्जेक्ट में कैसा करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको डीप नॉलेज मिल जाएगा. क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स. मैथ्स में कौन कौन थोड़ा पीछे है? मैथ्स किस किस को प्रॉब्लम है? मैथ्स, मैथमेटिक्स. अच्छा बोलता मैं माशाल्लाह. साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज, जान दो सर ये सवाल आपको पूछो, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस माइंड मैपिंग. अब एक काम करेंगे, पहले साइंस लिखेंगे. क्लियर? डाउट आया तो पूछना बच्चों, समझे ना, ये सेशन आपके लिए है. एनी डाउट यू कैन आस्क, देयर इज नो सिली क्वेश्चंस, ओके, नो वरीज, बेझिझक पूछ सकते आप, नो पर्सनल क्वेश्चंस, ओके. हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल साइंस ले लो आप. साइंस क्या करेंगे आप? साइंस का हेडिंग लिखेंगे, क्लाउड बनाएंगे. फिजिक्स ले लो आप. फिजिक्स लिख के क्या करेंगे आप? चैप्टर्स लिखेंगे. क्लियर? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं लिखना है, चैप्टर 1 का नाम लिखना है. एवरीवन राइट? ड्रॉ फिजिक्स, चैप्टर 1 का नाम, चैप्टर 2 का नाम, चैप्टर 3 का नाम, चैप्टर 4 का नाम. क्लियर एवरीवन? क्लियर? उसको चैप्टर 1 निकालेंगे, फिर चैप्टर 1 का नाम पे क्लाउड बनाएंगे. बनाए बाद क्या करेंगे उसके अंदर? Absolutely, content, right? Content. You have content, right? Content 1, 2 नहीं लिखना है. क्लाउड बनाएंगे, कंटेंट में आप बुक निकालेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे, की पॉइंट्स लिखेंगे. क्या लिखेंगे आप? की पॉइंट्स. एटलीस्ट 10 की पॉइंट्स फॉर वन कंटेंट ऑफ ए वन चैप्टर. समझ में आ रहा बच्चों? 10 की पॉइंट्स फॉर वन कंटेंट ऑफ वन चैप्टर. अब आप देखिए 15 कंटेंट है एक चैप्टर का, 15 into 10 की पॉइंट्स, 150 की पॉइंट्स. Yes or no? My dear children, when you do mind mapping practically, when you have करना है, हेलो, खाली बोलने से नहीं होता. माइंड मैपिंग सर बोल दिया हो गया, ये वो किस्सा हो गया, ईरानी चाय सामने रख दिया, चाय पिया, चाय पिया, चाय पिया, चाय पिया, चाय का मजा नहीं आया. समझ आ रहा? तो करना है माइंड मैपिंग. Will you do it, everyone? Yes. Is the session boring? No. Is the session boring? You want entertainment or let's continue? Continue? Yes. With seriousness? Yes. बीच में एंटरटेन आएगा, डोंट वरी. ओके ना, तो करना है, क्या करना है? माइंड मैपिंग. कहाँ पे करना है? कहाँ पे करना है? A4 साइज पेपर में क्या करना है? माइंड मैपिंग करना है. अच्छा, A4 साइज में माइंड मैपिंग हो गया. Got the idea? Yes. I'll repeat again. For example, mathematics, chapter 1, chapter 2, chapter 3 नाम लिखना है. चैप्टर 1 लिखा है, उठाए आप, चैप्टर 1 का नाम लिख के बाद उसके कंटेंट. सेम अप्लाइज फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, फार्मूलाज. फार्मूलाज का माइंड मैप बनाइए आप. फार्मूला 1, 2 पूरा लिखो फार्मूला. इट स्टिक्स ऑन योर माइंड. इट्स इजी फॉर यू टू रिकलेक्ट व्हेन यू गो टू द एग्जाम पेपर. एग्जाम पेपर देखते ही अरे वाह ये मालूम, वो टाइम में ये नहीं आती, अल्लाह मालूम है लेकिन डांटिए, वैसा नहीं होता. But mind mapping very important. For your information, I have done mind mapping on 5,000 topics. Got it? Yes. That is the power of knowledge. You can stand and talk.
when you have this full. Clear? मैं एग्जाम्पल बता दूं आपको, एम्प्टी नहीं रखना है, प्लीज फुल रखना है. अभी ये मत बोलना है कि आज तो प्रिपेयर नहीं करा, मैं क्या करूँगा कि नए एग्जाम है. इट्स ओके. वी हैव मार्च अप्रैल 2 months. Yes or no? 1 महीना काफी है. कितना? 1 month enough. If you are very serious, do the mind mapping. Will you do? Yes. Promise? Yes. Promise. चलो एक टेक्निक हो गया, समझ में आया? Yes. अब मैं जो बोला टेक्निक वो अब आप क्या करेंगे, घर में जाके YouTube में यू कैन टाइप दिस नेम टोनी बुजान. ही इज द फाउंडर ऑफ माइंड मैपिंग टेक्निक. उनका आप YouTube में देख सकते हो, उनका वीडियो माइंड मैपिंग का पूरे बेहतरीन वीडियो है. क्लियर? Yes. ओके. नाउ दूसरा अहम चीज वो है कि रीड एंड राइट. क्या है? प्लीज माय डियर चिल्ड्रन, अब ये मत बोलो कि सर मैं बुक उठाती मेरे को नींद आती. उसके लिए क्या करना है? देयर आर सर्टेन टेक्निक और आइडिया टू फॉलो. वील हैव अ ब्रेकअप प्रैक्टिस. क्या बोलते हैं उसको? Practice. वो कैसा मैं आपको समझाता हूँ. आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है. क्या बनाएंगे आप? Timetable. घर में जाएंगे आप, आज पेरेंट्स के साथ बैठो, आज आराम से रात में बैठो, टाइम टेबल बनाओ. वेरी क्लियर. मेरा टाइम टेबल मैं आपको बताता हूँ. एक एग्जाम्पल, मेरे वालिद साहब की एक फिलोसफी है, पॉलिसी है, मैं फॉलो कर रहा हूँ. 7 साल से वही फॉलो कर रहा हूँ. इसके लिए आज 42 है, फिर भी फिट हो रहा हूँ. मेरे वालिद साहब बोलते बेटा रात में आधा पेट ही खाना. और हैदराबाद में दावत में कहते फिर भी आधा पेट ही खाना. क्या वो? अरे ये लड़को बोला सर, फिर भी आधा पेट ही खाना. दावत को गए एक आदत है मेरी. आई ईट ओनली हाफ स्टमक इन द नाइट एंड बिफोर 11 PM आई स्लीप, नॉट 3 AM. हेलो, बिफोर 11 PM आई स्लीप. आधा पेट खाना और रात से 11 बजे से पहले सो जाओ. यकीन नहीं करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, आई प्रॉमिस यू इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको 4:30-5 बजे उठाएंगे. क्यों बोलो? भूख आपको उठाती. गॉट इट? ऑटोमेटिकली विल वेक अप. इट्स अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस. 7 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और आई हैव अ टाइम टेबल ऑल्सो एट होम. आई फॉलो, माई चिल्ड्रन फॉलो द टाइम टेबल. ब्रेक करो. 3 घंटा 4 घंटा लेके किताब बैठे. 4 घंटा बैठा मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं गया. खाली किताब लेके बैठ गए या लिख लिए, खाली लिखते हैं. क्या लिखा है उसको नहीं मालूम. 3 घंटा 4 घंटा. अब पापा मुझे बोल रही है मेरा बच्चा कितना मेहनत कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा. मैक्सिमम 45 मिनट. उसके बाद 10 या 15 मिनट ब्रेक. 10 या 15 मिनट ब्रेक बोलो तो 10 या 15 मिनट ब्रेक. 1.5 घंटा ब्रेक नहीं है. हेलो, हैदराबाद का टाइम नहीं है. अब भी आपको बोल के 2 घंटे वहीं आना. समझ आ रहा? 10 से 15 मिनट ब्रेक बोले तो 10 से 15 मिनट ब्रेक. बी वेरी डिसिप्लिन. सबके पास स्मार्टफोन है? आप ये दुनिया में नहीं है. जस्ट किडिंग. स्मार्टफोन है? माँ बाप के पास भी है? बच्चों के पास भी है? रहता वो घर में कैसे देते माँ बाप? माँ बाप थोड़ा लाड़ करते, बच्चे जरा बुलाते, माँ बाप दे देते, क्योंकि माँ बाप का दिल वैसा रहता. अब ये टॉपिक पे क्यों आ रहा हूँ, जरा गौर करो आप. स्मार्टफोन है और व्हाट्सएप भी है. यस और नो? हाँ बेटा, स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप भी है, लेकिन वी आर वेरी पर्टिकुलर. देखो डीपी जबरदस्त. क्या ना डीपी शिपी दुनिया वाले बोलना मैं कुछ स्पेशल हूँ. यस और नो? We are very particular that our DP on WhatsApp should be absolutely fantastic. Yes or no? My dear children, what's your live DP? DP WhatsApp को तो समझ में आ गया. Live DP क्या है? जो आप फॉलो करेंगे, you will fetch success in every walk of your life. Your love, your respect and success. वो क्या है मालूम आपको? Live DP है discipline and punctuality. Note करो एक point. Discipline in your thinking, discipline in your seeing, discipline in your talking, discipline in your actions, and punctuality. You should be punctual. Very, very important. Value the time, value people, relationship. तब जाके knowledge हासिल होती. knowledge हासिल होती, उसको अमल में लाने का आइडिया मिलता.
कनेक्टिंग दिस वन, नाउ कनेक्टिंग दिस वन टू दी टेक्निक। टाइम टेबल क्यों बनाओ बोला, खुद ब खुद पंक्चुअल बनते हैं आप। गॉट इट? तो आधा घंटा 45 मिनट्स, पेरेंट्स गौर करो ये बात, आधा घंटा 45 मिनट्स एक सब्जेक्ट पे बच्चा माइंड मैप करेगा, 10-15 मिनट्स ब्रेक, देन बैक विद अनदर सब्जेक्ट, माइंड मैप, ब्रेक, देन माइंड मैप। रोज एक दिन में कम से कम 3 माइंड मैप 3 सब्जेक्ट पे 3 चैप्टर्स पे करना है। आज से प्लीज, आज से दिमाग में बिठा लो आप, रोज 3 सब्जेक्ट पे या 3 चैप्टर पे माइंड मैप करना है। दैट मीन्स हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स इंटू 3। वो आप डिसाइड करेंगे क्या टाइम इज फीजिबल फॉर यू, मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट। गॉट इट? एज पर योर विश, एज पर योर कन्वीनियंस। गॉट इट एवरीवन? हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, रीड राइट करना जरूरी है। जो भी स्कूल में टीचर पढ़ाए, आप नोट्स बनाए ना, उसको रीड करो। रीड कैसा करेंगे, ऐसा नहीं है, लाउडली। उसका और एक बोलता हूं मैं आपको, आईने के सामने खड़ना, मिरर प्रैक्टिस। व्हाट? मिरर प्रैक्टिस। आईने के सामने करो, टीचर जो बोलती है लाउडली रीड करो, एज इफ यू आर डिक्टेटिंग टू अदर्स। एवरीवन? You know why, my dear children? There is a beautiful concept. When you teach, you learn. When you teach, जब आप सिखाएंगे तो आप सीखते हैं। टीचर्स के लिए एक आइडिया है, जब आप सिखाते हैं ना, कभी आप अपने आप को सरप्राइज होते हैं कि आप कुछ आज नया सिखाए जो आपको सोच के नहीं आया। होता ये सब नो। Why? Because you are learning. When you teach, you are learning. बच्चे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर प्रैक्टिस। पहले 1-2 दिन शर्माएंगे, ऐसा मैं खुद देख रहा हूँ, थोड़े बच्चे शर्माएंगे, थोड़े बच्चे डरेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, पागल समझेगा। होता है ऐसा, इट्स ओके, रिलैक्स। माइंड मैपिंग करो आप और मिरर प्रैक्टिस करो। आई हैव डन मिरर प्रैक्टिस फॉर ऑलमोस्ट 10 years. That is the reason, the powerful body language, my hand gestures, my facial expression. I walk the talk because mirror practice. 10 साल कर रहा हूँ, ये मेरा मास्टर सर्टिफिकेट का जर्नी में कर रहा हूँ। So please understand, mirror practice, read loudly or indicate you are teaching others or dictating some notes to others. Got it? Yes. Everyone? Yes. Then mind mapping. Got it? Yes. Clear? Yes. Everyone? Yes. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझा तुम बता। यस, SWOT एनालिसिस। कुछ नहीं जानते कि हमारा पोटेंशियलिटी या हमारा कैपेसिटी कितना है, उसको सेल्फ रियलाइज करना जरूरी है। उसको बोलते हैं SWOT एनालिसिस। व्हाट? SWOT, SWOT analysis, the first tool given to any individual, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो या मैनेजर हो या ट्रेनर हो या टीचर हो, फैकल्टी हो, the first tool given is SWOT analysis. This stands for your strengths, your weaknesses. कोई बात, it's okay, but be honest. Got it? उसके बाद क्या करेंगे? You start working on your strengths, maximizing your strengths. Automatically, you bring down your weaknesses. When that is happening, you can take up the opportunities by avoiding the threats. Clear? Yes. Clear, children? Yes. For example, exam phobia. वो दिमाग में माइंड से मैं आपको बोल दिया, फोबिया कुछ नहीं होता, खाली सोच है वो। एग्जाम का डर दिमाग में बिठा देते हैं आप, कुछ नहीं है। एग्जाम इज नथिंग, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. Have the confidence, start the practice, the mind mapping, the read-write technique. Trust me, there are 2 months time for you. If you really sincerely practice, you can score beautiful marks. Everyone, Yes. will you do it? Yes. तो ending करूँगा मैं अभी, उसके पहले question answer session. Anyone would love to ask questions? Please ask questions. After that, I'll give you a beautiful thought so that it will motivate you. Any questions? अभी तक कुछ डाउट्स या अभी जो सेशन हुआ अभी तक इसमें और कुछ इनपुट्स चाहिए आप लोगों को? माइंड मैपिंग, रीडिंग, राइटिंग, SWOT एनालिसिस. यस चिल्ड्रन, यस आज बेटा. माइंड मैपिंग क्या करोगे? ओके, सिट. माइंड मैपिंग आपको बैठ के पेपर में करना है. एक सब्जेक्ट लेके आप उसको मिडिल में, फॉर एग्जाम्पल ट्री भी बना सकते हो, राइट? ट्री में
जो लिखेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद जो ब्रांचेस जाएंगे उसके की पॉइंट्स, फिर एक एक ब्रांच का आप ट्री बनाएंगे। उसमें क्या होगा, यू आर गोइंग इन डीप ऑफ दैट सब्जेक्ट। The more you go in depth of the subject, the more you can have the knowledge about that subject. Clear? If you, for example, mind map करने के बाद छोड़ देना नहीं है उसको, वो पिक्चर को, डायग्राम को छोड़ना नहीं है। अच्छा, ये माइंड मैप क्यों? बिकॉज गौर करो ये बात, आप लोग कभी बाहर जाएंगे तो आपको क्या अट्रैक्ट करता? जो बड़े बड़े पोस्टर्स है, कलरफुल है, पिक्चर्स है, फोटोस है, ये सब नो अट्रैक्ट करता नहीं करता? सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल और एक समझाता हूँ। बच्चे शॉपिंग को जाते, शॉपिंग बोलते ही सब कुछ हो, बच्चे शॉपिंग को जाते। अब एक शोरूम में बाहर लाल फ्रॉक डायमंड ज्वेलरी में लटका है, अब ऐसे चलते जा रहे, देखिए अल्लाह, इमीडिएटली योर हेड विल टर्न, यस और नो? यस और नो? अब बच्चों को आता हूँ, बच्चों को छोड़ना नहीं ना, अब बच्चे बाइक के क्रेज है। अब दोनों दोस्त चल के जा रहे हैं, होंडा इंपोर्टेड बाइक बन गई, अल्लाह कितना अच्छा है, यस और नो? यस और नो? ऑटोमेटिकली योर हेड टर्न्स, यस और नो? ये अल्लाह ताला का डिफॉल्ट सेटिंग है। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन और ए कलरफुल कॉम्बिनेशन। प्लीज माय डियर चिल्ड्रन, ये बात गौर करो, ह्यूमन माइंड्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन और ए कलरफुल कॉम्बिनेशन। क्लियर? दैट इज द रीजन वी डू माइंड मैपिंग। गॉट इट बेटा? गॉट द आंसर? क्लियर स्टूडेंट्स? अब समझ में आया? ये एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ गया? ओके, एनीवन, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, इट्स ओके, टाइम हो गया, हम लोग पेरेंट्स से भी बात करना है। लास्ट एक बहुत अच्छा कोट मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात आप दिमाग में बिठाइए। There's a famous saying, don't think that I have everything. क्या? उसमें क्या होता मालूम? एटीट्यूड आता, और यू नो व्हाट, ओवर कॉन्फिडेंस आता। डोंट डू दैट, डोंट थिंक दैट आई हैव नथिंग। डीमोरलाइज हो जाते हैं आप, कॉन्फिडेंस है से चला जाता, जान देंगे आपका नहीं पास होगा। ये सब नो, ये सब नो। तो दो चीज क्या है? डोंट थिंक दैट आई हैव एवरीथिंग, डोंट थिंक दैट आई हैव नथिंग, बट थिंक दैट आई हैव समथिंग बाय व्हिच आई कैन अचीव एनी। आज हमारे ऊपर जो है अल्लाह की बरकत ही बरकत है, और ये बरकत आपसे ऐसी कनेक्ट हुई कि आप सब इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। तो माशाल्लाह, जिस तरीके से आप कनेक्ट हो रहे थे, आप अपने सब्जेक्ट से भी कनेक्ट हुए, आप अपने दोस्तों से कनेक्ट हुए, आप अपनी सोसाइटी से कनेक्ट हुए, कितना ब्यूटीफुली कनेक्ट हुए हैं वो आपसे दिख गया। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं तो उसमें 2000 की नोट है, 500 की नोट है, और जो है 100 की नोट है, 50 है, 20 है, 10 है, सब पड़े हुए हैं। तो दिमाग के अंदर हमारे पास जो है ऐसे ही जो है चीजें, सब्जेक्ट्स और उनकी चीजें पड़े हुए रहते हैं। तो उनको जो है छांट कर अलग अलग रख के आप एक छोटी छोटी गड्डी बनाएं, फिर उसको आप देखिए। तो ये जो चीज डॉक्टर साहब बताया है, इंतहाई मौजू और इंतहाई काम आने वाली है आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि हम जो देखते हैं वो याद रखते हैं, हम जो सुनते हैं बातों को भूल जाते हैं। तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपके वो ट्रीज नजर आएंगे जो आप बनाए हैं, जो माइंड मैपिंग जो करे हैं, वो आपके सामने खुल के सामने आ जाते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स हमारे को जो है समझना है और उसको ज़हन नशीन करना है, और वक्त आने पर उसी को रिप्लिकेट करना है। फिर उसके बाद का स्टेज आता है क्रिटिकल थिंकिंग, दैट्स अनदर टॉपिक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर साहब को हम इनवाइट करेंगे कभी कि इन चीजों के ऊपर आपसे वो कनेक्ट हों कि व्हाट्स दैट, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये आपको जो है क्रिटिकल थिंकिंग आपको सोचना और उस पर अमल करना चाहिए। आपके लिए इन चीजों पे अमल करने से वो चीजें जो आइंदा आने वाली हैं उसमें बड़ा मजा आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बरकतुल्लाह खान साहब, जो जिस कदर आप खूबसूरती से जो कनेक्ट हुए हैं सारे स्टूडेंट से,
मैं ये बताता हूँ कि मैं पहली मर्तबा ऐसे वेल कनेक्टेड आदमी आपको देख रहा हूँ। और एक चीज मैं बोलूंगा कि ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते, और जब तक ये हैदराबाद में है आप और हम इनसे फायदा उठाना चाहिए। और बरकत भाई, आप एक छोटा सा जो है मजमून भी आप हमारे लिए लिख दें, बुकलेट की शक्ल में या कोई भी शक्ल में, और आपके लेक्चर्स हमारे को जो है यूट्यूब के अंदर आप लोड करके हम तक पहुंचाएं, क्योंकि आप में जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, जो कनेक्टिविटी है, जो आप लोगों का, बच्चों का जो दिल जीत रहे हैं, और उनके लेवल पर आकर उनके लेवल के ऊपर आना बहुत बड़ी खूबी है आपकी। और ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको देन है जो आप अपना मेयार कम करते हुए इनके मेयार को टच करें और इनके दिलों को छू लिया। और ये जो छूने की जो कैफियत है, बहुत कम लोगों में ये कैफियत होती है जो कनेक्ट हो पाते हैं। तो माशाल्लाह, वाकई माँ बाप की दुआ है, और आप लोग भी जो है अपनी माँ बाप की दुआएं लीजिए और उनसे कनेक्ट हुई है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है और जैसी भी रिक्वायरमेंट है, आज आप ये चीज अपने साथ बांध कर लेके जाएं कि माइंड मैपिंग क्या होती है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आइंदा कभी साहब को बुला करके और उनकी बरकतों में और क्या क्या शामिल है, जरा पोटली खोलेंगे उनकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया है ना। अभी मान लो माइंड भी मैपिंग करता है, तो मैं घर जाके वही काम करूंगा कि मैपिंग करूँ, अपने आप को बताने को मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। अगर सबसे बड़ी बात तो बच्चों से बोलूंगा, मोटरसाइकिल बोल दिए साहब, होंडा गई तो सब पलट के देखते, होंडा को अचीव कैसा करना, सही है। पहले मोटरसाइकिल में बैठ के चाय पी के अचीव नहीं होती। बच्चों को देखो ये सब तुम लोग बाजू लेके गए, बच्चे खास तौर पे ये समझ लो कि तुम लोग ही सबसे वो है ऊपर, और तुम लोग करना है। ये क्या बच्चे सब आगे बढ़ जा रहे, कितनी शर्म की बात है नहीं है, बोलो ना। तो देखो तुम बच्चों को देखो कैसा अचीव कर रहे, तुमने क्या हिम्मत होंगी और क्या जज्बा होगा उनका। पर मैं बता देगा वो तो शुक्रगुजार हूँ, तुम लोगों ने इतना टाइम दिया और तुम लोगों को समझाया, अल्लाह उनको ज़्यादा दे। तुम लोगों को जो है उनकी वो नसीहत पे अमल करने की तौफीक दे। लास्ट में मेन चीज़ मैं बोलना भूल गया मैं आपको मालूम है मेरा मकसद क्या है एंड व्हाई आई एम हियर। और मेरे को ऑफर भी है यूएस का, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर है मेरे को, मैं उसको ठुकरा दिया। फादर्स लास्ट, तो मैं अभी हेल्पिंग हैंड्स एंड फैजान आर्म ट्रस्ट के साथ आई एम गोइंग टू जॉइन हैंड्स with a vision to transform our youth, make you a global employable citizen, inshallah. तो उसके लिए सर जो बोले, we are going to have a channelized training and certification programs, okay? लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे, LSRW इंग्लिश स्किल्स, हम एक्सपर्ट इन लैंग्वेज, IELTS ट्रेनर आपको मालूम है, और जो वॉइस एंड एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद बिहेवियर के ऊपर काम करेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जॉब रेडीनेस के ऊपर काम करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूम्स, हाउ टू फेस इंटरव्यूज, पावर ड्रेसिंग, गोल सेटिंग, सेल्फ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग, ओके। उसके बाद वी विल आल्सो ट्रेन यू ऑन द इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड टू गो एंड अचीव attend the competitive exams like IFS, IAS, IPS, IRS जो बनना चाह रहे हैं बच्चों को, इंशाल्लाह हम लोग इस पर प्लेटफॉर्म बनाएंगे। फैजान आर्म ट्रस्ट से जो भी बच्चे आए हैं, सत्तार साहब को नाम दीजिए, आई वांट योर नेम, योर मोबाइल नंबर, मेरे को हर एक बच्चे का डाटा होना है। बेफिक्र हो आप, आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपके पीछे नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि कोई भी बच्चा अगर दिल से पढ़ना चाह रहा है, यू आर वेलकम। आई डोंट एनी वन जस्ट फोर्सफुली कमिंग एंड डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट, आई डोंट एंटरटेन, और मैं क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। प्लीज़ डोंट कम फॉर द टाइम पास, ओके। क्लियर एवरीवन? ऑनेस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ मैं आपको, गॉट इट? जो बच्चे रियली कुछ बनना चाह रहे हैं, वी हैव सर्टिफिकेशन, आई एम मास्टर ट्रेनर, लाइसेंस टू ट्रेन एंड सर्टिफाई इंडिविजुअल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मेरे कोई बॉडी की जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ, देयर आर ओनली 44 मास्टर ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड, there are 24 in Asia, 10 in India, and the national topper and the first Muslim, alhamdulillah.
मैं खुशी से बोल रहा हूँ, लेकिन वाले सबकी याद आ रहा है। ओके अलहमदिल्ला। सो प्लीज यू आर वेलकम। या हेल्पिंग हैंड्स की जो भी बच्चे आए हैं, जो बच्चे हेल्पिंग हैंड्स के थ्रू आए हैं, प्लीज अपना डाटाबेस दीजिए। ओके, वी विल टेक इट फॉरवर्ड, वी विल हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर यू। Thank you all for coming over here and listening to me, and I wish you all the best my dear children। मेहनत करो, ठीक है, पैशन से करना। अल्लाह ताला आप सबको आसानी फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।